میں عمر آپ کہتے تھے حاضر، اگر تھنک ٹینک صحیح سوچے تو نتیجہ صحیح نکلتا ہے. اگر کوئی پلان ہو تو اس کو پلیئر ایگزیکیوٹ کریں گے، اگر پلان ہی نہیں ہے تو پلیئر کیا کریں گے. 10 لگاتار T20 ہار کے بعد عالمی چیمپئن. ملتان میں ہی دوسرا ٹیسٹ بھی کھیلا گیا، پاکستان اور انگلینڈ کا. اس سے پہلے ٹیسٹ میں بے حساب رن بنے تھے، اس میں اتنے رن نہیں بنے. جو اس میں نتیجہ نکلا تھا اس میں نہیں نکلا، اور پاکستان نے بالآخر 11 ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ میچ جیتا ہے. اس سے پہلے آگے بڑھوں، کچھ میل ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے پاکستان کی پرفارمنس جو پچھلے سے پچھلے پروگرام میں ہوئے تھے، بھیجے تھے آپ نے. عمر کہتے ہیں پاک آر پلئنگ آن ادر ٹیم اسٹرینگتھ ناٹ آن دیئر ویکنیسز. بہت صحیح آپ نے فرمایا تھا تب، اور میں نے بھی بارہا کہا تھا معاملہ یہ نہیں ہے پلیئر کیا کر رہے ہیں، معاملہ ہے کہ بورڈ کیا چاہتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے وکٹ کیسا ہونا چاہیے، کس کمبینیشن کو کھلانا ہے، دوسری ٹیم کی ویکنیس کیا ہے، ہم کس چیز پہ جیت سکتے ہیں. اور ملتان میں ایسا ہی کیا، سلو اور لو وکٹ بنا. بالکل لو بال نہیں رہتی تھی، سلو وکٹ تھا، ٹرننگ وکٹ تھا. اور میں نے کہا تھا، آپ دیکھ لیجیے سیریز سے پہلے، کہ یہ بڑے بڑے بیٹسمین، بڑی بڑی ٹیمیں جب بال تھوڑی سلو ہو جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، ذرا سی ٹرن ہوتی ہے، نہیں کھیل پاتے ہیں، پھر وہ ہٹنگ نہیں چل پاتی جس کے وہ عادی ہیں. اور ایسا ہی ہوا ملتان میں. اب جب آپ کو ایسا موقع ملا، اس کا مطلب نہیں کہ آپ جیتیں گے. اور ٹاس پاکستان نے جیتا کروشل ہو گیا کہ پہلی اننگ میں اچھا سکور کیا، پھر دیکھیے ہر اننگ میں سکور کم ہوتا گیا پورے میچ میں. کامران غلام نے زبردست ڈیبو کیا، ہی ہیڈ بگ شوز ٹو فل. بابر اعظم کی جگہ آئے تھے، اور اس کے بعد بہت کیلکولیٹڈ بیٹنگ کی، اچھی بیٹنگ کی. ہاں ڈیفینیٹلی ان کو وکٹ اپنے موافق ملا، جیسے ڈومیسٹک کرکٹ میں وکٹ ہوتے ہیں ویسا وکٹ ملا ان کو، اور دکھا کہ انہوں نے بہت فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے، جیسے انہیں ٹائم لے کے کھیلا، اور جہاں موقع ملا سکور کیا. سائم ایوب کیم گڈ، اور یہ جو پارٹنرشپ تھی ان دو کی، یہ اس میچ میں بہت کروشل ثابت ہوئی. مگر جیسے کامران غلام آؤٹ ہوئے، ویسے لگا کہ بہت زیادہ خوش ہو گئے سینچری کے بعد، اب پویلین میں جا کے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. بے ساختہ آگے دوڑے، ہٹ مارنے کی کوشش میں آؤٹ ہو گئے. اگر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے، اس میں رہنا ہے، تو وکٹ کی جو قیمت ہے نا وہ ریز کرنی ہے. مجھے یاد ہے علی نکی نے سینچری بنائی تھی ڈیبو پہ، اور ایسے ہی کچھ آؤٹ ہو گئے وہ سینچری کے بعد ہی. جیفری بوائکاٹ کمنٹری کر رہے تھے، جن کا اینالیسس بے جوڑ تھا. تو انہوں نے انگریزی میں کہا، Son, if you have to play international cricket, this is not the way to get out. If you continue like this, don't put value on your wicket, you won't last long. And he did not last long. Taking nothing away from a very good inning by Kamran Ghulam. انگلینڈ نے وہی سٹارٹ کیا جیسے کرتے ہیں تیز. میں نے کہا ڈکٹ انیوجل بیٹسمین ہے، ان کو بالنگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور سینچری مار دی انہوں نے. اور اس سینچری کے دوران کافی کنفیوز نظر آئے شان مسعود کیپٹن شپ میں. ٹرن ہو رہی ہے بال، وہ سویپ کر رہے ہیں، ریورس سویپ کر رہے ہیں، تو اسکوائر جانا مشکل ہے. ٹرننگ بال پہ زیادہ فائن جائے گا، اسکوائر فیلڈر آ رہا ہے اور وائڈر فیلڈر آ رہے ہیں، تو ہی گاٹ اوے ود اٹ. ساجد خان نے 7 وکٹ لیے پہلی اننگ میں، نعمان نے 8 لیے دوسری میں، اور دونوں نے ملا کے 20 وکٹ لیے میچ میں. اور 1972 میں لارڈز میں یہ ہوا تھا. باب میسی نے ڈیبیو پہ 16 لیے تھے، لیلی نے 4 لیے تھے، تو 2 ہی بالرز نے 20 وکٹ لیے تھے. وہ فاسٹ بالر تھے، اور اس بار 2 ہی بالرز نے 20 وکٹ لیے، وہ اسپنر تھے. ایجنگ اسپنر لگتے ہیں آپ کو، 35 36 37 38 سال کے 3 اسپنر تھے. لیکن اسپنر عمر کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ 100 سال تک کھیلے گا، لیکن ینگ اسپنر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پٹ جائے، تھوڑی مار پڑے تو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے، وقت کے ساتھ وہ سیکھ جاتا ہے. These 2 won ملتان ٹیسٹ for پاکستان. دوسری اننگ میں پاکستان کے سلمان علی آغا نے جو کرکٹ کھیلی اس سے بہت فرق پڑا. اسی سے سکور ایسا ہو گیا کہ انگلینڈ دباؤ میں آ گیا. ہر اننگ میں یہ بیٹسمین ٹیل کے ساتھ کھیل کے مینیج کرتا ہے، اور ریکارڈ دیکھیں کیا سکور کرتے ہیں. لیکن ان کی وہ تعریف نہیں ہوتی جو باقیوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ اپنا کام بہت بہتر نبھاتے ہیں. اس میں ساجد خان کے ساتھ جو ان کی پارٹنرشپ تھی وہ بہت اہم تھی، اسی لیے ساجد خان مین آف دا میچ ہو گئے. ایک تو پہلی اننگ میں وکٹ لیے، اور دوسری بات بیٹنگ بھی صحیح کی. اور میں نے وہی بات کہی تھی کہ بال تھوڑی رک کے ٹرن ہو تو بڑے بڑے بیٹسمین باہر کے گر جاتے ہیں.
सेकंड इनिंग में इंग्लैंड को कुछ समझ नहीं आया, हाउ टू हैंडल द विकेट, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। जो उनकी बैटिंग लाइनअप है 297 वो बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं वो ना बना पाए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा टिकना है, बहुत ज्यादा पेशेंस है। वो सिर्फ रूट के पास है उनकी टीम में, बाकी में उसकी कमी है। अब रूट निकले तो पता था अब ज्यादा देर टीम नहीं रहेगी। फारूक अहमद भट्ट का मेल था और वो कहते थे पाकिस्तान शुड मेक चेंजेस इन टीम सिलेक्शन कमेटी के बदले, और उनको चाहिए अ गुड थिंक टैंक जो प्लेयर्स को सोशल मीडिया से दूर रखे। वो कहते हैं मिकी आर्थर ने जो कहा है वो सही है, वो जो मैंने उनकी बातें आपको सुनाई थी। दानिश आफाकी हैं बहुत देर के बाद, ये कहते हैं कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड, पिछले टेस्ट के बाद इन्हें लिखा था मेल, इन्हें लिखा था कि पाकिस्तान की टीम वो टीम है जिनने पिछले 3 साल में मैक्सिमम टेस्ट हारे हैं और मैक्सिमम होम टेस्ट हारे हैं, और इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में कंडीशन बेहतर एसेस की पाकिस्तान से और उसी हिसाब से खेला। तो साइम अयूब का इन्हें लिखा था, अभी मैंने पिछली बार कहा था उनको चांस देना चाहिए अगर आपको उनको टीम में रखना है, और इन्हें कहा था यासिर शाह के बाद जेन्युइन स्पिनर पैदा नहीं हुआ जिसने विकेट ली, ये सही है, मैच विनिंग स्पिनर पैदा नहीं हुआ और स्पिनर्स को लॉन्ग रन भी नहीं दिया गया कि वो अपने आप को साबित करें। ये लिखा था कि एक मैच ऑफिशियल को भी रखा गया लिमडार को, 26 सिलेक्टर बदले जैसे आपने कहा इनने 2021 अगस्त से, सही बात है। और अभी अगर आप कमेंट्री भी सुने, नासिर हुसैन सिर्फ यही चीज कहते थे, इसी टीम को आप खिलाएं और इसके 2-4 प्लेयर हैं आपके बाहर जो इंपॉर्टेंट है उनको इसमें शामिल करें और यही सिलेक्शन कमेटी रखें, यही सिस्टम रखें, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें तो आप अच्छा खेलेंगे। अगर आप लगातार बदलते रहे तो अनसर्टनिटी बढ़ती है, और ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ। वाजिद गुलजार ने एक चीज पॉइंट आउट की है और सही की है, उन्होंने लिखा है कि आपने जो बात की थी ज़िडान की वो 2006 आलमी कप की थी, और जो सवाल का जवाब था वॉल्टर ज़ेंगा वो 1990 का था, तो कहीं मिक्सअप हो गया। सही कह रहे हैं आप, सवाल आपने सही पॉइंट आउट किया है, सवाल का जवाब सही था वॉल्टर ज़ेंगा, लेकिन ये जो मैंने बात ऐड की थी ये इटली फिर फाइनल में था, उस बार जर्मनी से हारा था, इस बार जीता पेनल्टी शूट आउट पे फ्रांस से, तो 2 चीजें मिक्स हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। यहां एक और बात कहूंगा, इससे पहले कुछ और मेल लूं। 3 स्पिनर खिलाना टीम में लग्जरी हो जाती है बाय एंड लार्ज, अगर आपसे नहीं हैंडल होते हैं। जाहिद महमूद ने पूरे मैच में 6 ओवर किए, अगर भरोसा नहीं था तो खिलाया क्यों? नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसी कंडीशन में पहला चेंज राइट आर्म लेग स्पिनर आता है, वो सीधी निकालता है फ्लिपर, टर्न कराता है बॉल, उसकी बॉल में टप्पे के बाद रफ्तार आती है तो बड़ा मसला हो जाता है उसको खेलना। पहली इनिंग में 6 ओवर, दूसरी में 1 भी ओवर नहीं, कहेंगे दूसरी में दोनों ने अच्छी बॉलिंग की बाकी बॉलर्स ने, ठीक है, लेकिन पहली में क्या हुआ? 35 ओवर के बाद पहला ओवर, 2-4 ओवर, फिर 1-2 ओवर, जब टी ब्रेक आनी है, लंच ब्रेक आनी उससे पहले, तो अब उस बॉलर के खाते में एक और मैच आ गया कि इतने मैचों में इसने इतने ही विकेट लिए हैं, लेकिन उससे आपने काम क्या लिया? और अगर नहीं बॉलिंग देनी थी खिलाया क्यों? यू कुड हैव प्लेड अ बैटिंग ऑलराउंडर, उनको खिलाया और कैप्टन को पता नहीं था व्हाट टू डू विद हिम। और हम नहीं कह सकते कि सेकंड इनिंग में अगर वो बॉलिंग करने आते इन 2 नोमान अली और साजिद खान के बदले तो वो विकेट नहीं लेते, मौका नहीं मिला उनको। तो ऐसे प्लेयर मिसहैंडल होते हैं और सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। आरिफ रशीद भट्ट का चाडोरा नौपुरा से मेल है, कहते हैं कि यूर एनालिसिस ऑलवेज राइट, थैंक यू सो मच। तनवीर अहमद है बेमना से, कहते हैं आपके बोलने का तरीका और एनालिसिस आई लव इट, सो ग्रेटफुल। ये कहते हैं आगे बढ़ के उमर की बेस्ट ऑप्शन इनके लिए रहते हैं वसीम जूनियर, वो रिवर्स स्विंग कराते हैं बॉल को, ये सही है। वो कैसे सर्कुलेशन से बाहर हो गए, कैसे आलमी कप से बाहर हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, अच्छी बैटिंग करके, अच्छे फील्डर होने के बावजूद, ये वही जानते होंगे। और उनके बारे में बहुत बड़े प्लेयरों ने कहा था कि डोंट ड्रॉप हिम, तो मगर वहां आपको पता ही है क्या हो रहा होता है, आप भी जानते हैं कि उनको खुद नहीं पता वहां क्या हो रहा होता है बोर्ड में, सिलेक्शन में। जावेद अहमद भट्ट कहते हैं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है जो फखर जमान ने स्टेटमेंट दी है बाबर आजम के ड्रॉप होने के बाद? देखिए, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अगर है नहीं बोलना पड़ता है उनको, मगर वहां सब बोलते हैं, वहां 11 में जो प्लेयर है वो भी बोलता है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, तो इसलिए ये भी बोले कि इतने अच्छे प्लेयर को अगर आपने ऐसे ट्रीट किया तो बाकी प्लेयर्स जो हैं उन पे भी असर पड़ता है, तो उसके बाद
टीम सारी पे असर पड़ता है। बात उन्होंने गलत नहीं कही। तनवीर मुल्ला ने एक बात भी कही है इससे रिलेटेड, और इन्होंने कहा है कि पीसीबी फंडे में रेस्टेड ड्रॉप मींस के प्लेयर डेंजर जोन में है। बिल्कुल सही, और इसीलिए हाफ फिट शाहीन अफरीदी खेलते रहे कि अगर उन्हें रेस्ट लिया तो फिर वापस नहीं बुलाए जाएंगे। जवाब मिल गया सबको, जिनने कहा था प्लेयर को खुद रेस्ट करना चाहिए। और सही है, वहां अनसर्टनिटी बहुत है, भूल गए तो गए आप। और पास्ट में हमने देखा है, साजिद खान भी थे कि इनने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, एक बार बाहर रखा तो भूल ही गए। मोहम्मद अब्बास भी एक एग्जाम्पल है। ये सही कहते हैं आप, इसलिए वो मैदान में रहना चाहते। परवेज कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, बाबर वॉज नॉट अरेस्टेड, ही वॉज ड्रॉप्ड। आप लोगों को जिद है उनसे, कोई खास मसला है, कोई तकलीफ है आपको। बोर्ड ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा ही हैज बीन रेस्टेड, लेकिन आपको खुशी मिलती है, तसल्ली होती है अगर कहीं उनको ड्रॉप किया गया। ये नया लो है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। डारूफ कहते हैं कि ये सब कुछ शुरू हुआ 2023 के एशिया कप के डिबैकल से, और वर्स बैट टू वर्स पाकिस्तान की टीम हो रही है, और डेकेड्स में ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड परफॉर्मेंस उनकी इतनी बुरी नहीं रही है। और आगे डारूफ कहते हैं कि अगर जावेद मियांदाद जैसा हेड कोच होता ही वुड हैव डिलीवर्ड, मगर जावेद मियांदाद इनके इशारों पे नहीं नाचेगा। परवेज परे वारीपुरा बांगिल से कहते हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करना सही नहीं है, इससे उन पे और प्रेशर पड़ेगा। कभी सही भी होता है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, शायद वो थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जो मीडिया का प्रेशर था, जो सोशल मीडिया का, पुराने प्लेयर्स का बदतमीजी के हद तक जो आ गए थे, बुरा भला कह रहे थे, उससे दूर रहेंगे, थोड़े रिलैक्स करेंगे, बेटर सोचेंगे। और ही इज देयर इन स्कीम ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर एक बार बाहर गया तो फिर कभी लाएंगे ही नहीं उसको। और फिर मैं कहूंगा, चाहे कामरान गुलाम की बैटिंग हो, सईद अयूब की बैटिंग हो, पहली इनिंग में दूसरे टेस्ट की, उसमें विकेट का बड़ा हाथ था, जहां थोड़ी बॉल उठेगी, थोड़ी मूव होगी पिच से और हवा में, फिर इनको अपने आप को फिर से प्रूव करना है। आगे कहते हैं अहमद शहजाद ने इसमें क्या किया रोल, वो और बासित अली जो हैं उनकी बात अब कोई सुनता नहीं है, देख लेते हैं लोग या सुन लेते हैं, फिर मजाक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मोहम्मद कुमार कहते हैं शाहिद अफरीदी का क्या रोल है इस टीम को खराब करने में। एक रोल है, उनने वो इंतशार पैदा किया, शाहीन अफरीदी ही कैप्टन होने चाहिए, वो बेस्ट कैप्टन है। शाहीन अफरीदी उन टर्म्स पे सोचने लगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, छोटे हैं उम्र में भी, मैच तो बहुत खेले लेकिन उम्र कम है उनकी, तो ये असर पड़ा उन पे। फिर वो कुछ स्टेटमेंट जो देते रहे, उससे शाहिद अफरीदी खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, असर रहा, बहुत असर हुआ टीम पे। ही वाज नेवर अ गुड थिंकर और लर्नर ऑफ द गेम, ही वुड रिपीट हिज बैड शॉट अगेन एंड अगेन। तो इसलिए थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन असर लेना नहीं चाहिए प्लेयरों को। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं तो यू टेक इट ऑन चेन और चले आगे। बहुत हो गया पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट का हाल, तीसरे टेस्ट में कुछ भी हो सकता है, उलट फेर। और इस वक्त आलमी कप की बात करते हैं खवातीन के। न्यूजीलैंड ने 10 लगातार T20 इंटरनेशनल मैच हारे थे जब वो आलमी कप में पहुंचे। सामना इंडिया से हुआ, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप विद साउथ अफ्रीका, और इंडिया को हरा दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आलमी चैंपियन बन गए। जैसी परफॉर्मेंस थी तो साउथ अफ्रीका फेवरेट था फाइनल जीतने के लिए। वो खुल के खेल रहे थे। जो 2 टॉप स्कोरर हैं T20 आलमी कप के खवातीन के, वुल्ड हार्ट 223 रन और तैजमीन ब्रिट्स 187 रन, वो दोनों साउथ अफ्रीका की हैं। लेकिन बैटिंग न्यूजीलैंड को दी गई और न्यूजीलैंड ने 158 रन बना लिए। ये लो स्कोरिंग आलमी कप रहा है, इसके आगे भी बात होगी। इसमें स्पिनर और स्लो बॉलरों ने ज्यादा काम किया है। 158 में जो स्कोर था उसमें एमिली अख्तर ने 43 रन बनाए 38 बॉलों में, और ब्रुक हेडली ने 28 बॉलों में 38 रन बनाए। और सबसे ज्यादा मुश्किल साउथ अफ्रीका के लिए हुई आखिरी 7 बॉलों में, जब 17 रन बने। एक ही बड़ी पार्टनरशिप थी न्यूजीलैंड की इनिंग में, एमिली अख्तर और ब्रुक हेडली की 57 रन की 44 बॉलों में। लेकिन इस आलमी कप के लिए 158 बहुत बड़ा स्कोर था। 130-35 पे टीमें जा रही थी, 115-20 पे भी जीत रही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका
खुल के खेलता है और उनके कुछ बैट्समैन इस रफ्तार से और फुर्ती से हिट मारते हैं, लगता है कि जैसे मेल क्रिकेट चल रहा है, इतने अच्छे हैं। और वैसा स्टार्ट उन्होंने किया, 6.5 ओवरों में 51 रन, नो लॉस का, दे आर हेडिंग फॉर विन अगेन। लेकिन वही मामला हुआ, वुल्डहार्ट आउट हुई 27 बॉलों में 33 रन, तैजबिन ब्रिट्स आउट हुई और उसके बाद मैच हाथ से निकलता गया और आखिरी 2-3 ओवर में ये तय हो गया था कि न्यूजीलैंड ही मैच जीतेगा और न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन बन गया। साउथ अफ्रीका लगातार दूसरी बार खवातीन का T20 वर्ल्ड कप फाइनल हारा है। एक क्रूशल मैच था जो पाकिस्तान ने खेला न्यूजीलैंड से, अगर वो न्यूजीलैंड को हरा देते तो इंडिया के चांसेस बन गए थे, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता। और जो स्कोर किया न्यूजीलैंड ने 111, तो अगर वो 10 ओवर में पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाती सेमीफाइनल के लिए। तो उनने 50-55 रन कुछ बनाए और न्यूजीलैंड को उसे 111 रन में 8 स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेज, ऐसे मैं देख रहा था मैच, टीम ने छोड़े पाकिस्तान की। और फिर दूसरी बात यह है कि उसका बाद इंडियन टीम बाहर हो गई और इंडियन टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला जहां हरमनप्रीत ने 50 बनाया एंड तक रही, इंडियन टीम ने एक्सेलरेट करने में बहुत देर करती है। हरमनप्रीत भी इंतजार करती रही कब करूंगी, मेरा विकेट क्रूशल है। विकेट तो उनका वहीं रहा, मैच हार गई टीम, प्लेयर तो आउट ही नहीं हुए इंडियन टीम के। और दूसरी बॉल पे आखिरी ओवर के 1 रन लेकर दूसरी साइड खड़ी हो गई, जबकि वो कुछ भी कर सकती हैं, वो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, मध्यम की तरह छक्के मारती हैं, लेकिन वो देखती रही जबकि टीम बाहर हो गई। टीम डिवाइडेड है और हरमनप्रीत को आइसोलेट करने की कोशिश है और बाहर से पुरानी कैप्टन एक भी कह रही है इसको निकालो कैप्टनशिप से, लेकिन बोर्ड ने अच्छा किया है, सेलेक्टर्स ने, वो अभी कैप्टन को बरकरार रखा है। अब इस आलमी कप को अगर आप देखेंगे सीरियसली, मैंने देखा है, स्कोर 150 नहीं होता है और स्लो बॉलर सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ स्पिनर पे स्पिनर, स्पिनर पे स्पिनर, रुकी हुई बॉलें, स्लो बॉलें, वही विकेट ले रहे हैं और बॉल स्लो से स्लो की जा रही है। विकेट का मामला है शारजा के, दुबई शवाई के, एक ये मामला है और दूसरा वहां भी बेशतर टीमें स्लो और टर्निंग बॉल को नहीं खेल पाती। पिछले हफ्ते के क्विज के जवाब जिनने सही दिए उनके नाम, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, प्लेयर के सर को बॉल लगी है, वो जमीन पे गिरा है, बॉलर खड़ा है, हमने कहा था बॉलर कौन सा, टीमें कौन सी हैं और बैट्समैन का क्या नाम है। 13 फरवरी 1971, जमीन पे जिसको सर को बॉल लगी है, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर टेरी जेनर और बॉलर जॉन स्नो, फास्ट बॉलर इंग्लैंड के। और ये सही जवाब था। सही जवाब देने वाले जो हैं उनमें हैं शाहनवाज त्राल से, मुश्ताक लोन तिरुकुआंगाम शुपियन से, जीएम कुमार त्राल से, एजाज अली पुलवामा से, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, शौकत अली अवान गुंड पुलवामा और शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से। तो आपने सही जवाब दिए हैं सबने। थोड़ी देर में बताएंगे कि विनर कौन है। यहाँ कुछ मेल हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें जो पहला मेल है ये है मलिक शान का, बुगाम कुलगाम से। ये कहते हैं कि आपने कहा जावेद मियांदाद ने कुछ कहा था बाबर आजम की जो मुश्किलात है बैटिंग में उनके बारे में, और मेरा मानना यह है कि आप रहने दें बोर्ड को। बाबर आजम खुद तो जावेद मियांदाद के पास जा सकते हैं ये बात सुन के और अपनी मुश्किल दूर करा सकते हैं। बहुत सही बात आपने कही है कि वो खुद जाएं और उनसे बात करें, लेकिन वहां यह चलन है नहीं। वहां पुराने प्लेयर को कोई नया प्लेयर मानता नहीं है आसानी से कि उसको कुछ आता था। एक प्लेयर के बगैर उसकी तारीफ होती है या दो के। ये कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी दूसरे को सिखाएगा या प्रोटोकॉल के खिलाफ तो नहीं सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। 89-90 में इंडियन टीम जब श्रीकांत की कैप्टनशिप में पाकिस्तान गई तो पहले मैच में रमन लांबा को खेलना था, अजरुद्दीन ड्रॉप हो रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन नेक्स्ट में उन्होंने जहीर अब्बास से बात की। जहीर अब्बास ने उनको कहा कि थोड़ी परले हाथ की ग्रिप चेंज करिए आप, और उनकी खुशकिस्मती रमन लांबा जख्मी हुए, ये टीम में आ गए, इन्हें सेंचुरी बनाई और नेक्स्ट टूर पे न्यूजीलैंड के ये इंडियन टीम के कैप्टन थे। डेनिस लिली को मैल्कम मार्शल वो खुद कहते हैं आई चेज्ड हिम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टेल मी हाउ टू बोल दोज लेग कटर्स जो तुम करते हो, और लिली ने सिखाया। शेन वॉर्न ने बात की अब्दुल कादिर से सीखने के लिए। मॉन्टी पनेसर ने बिशन सिंह बेदी से। जब इंडियन टीम ग्रेग चैपल की
कोचिंग में गई थी पाकिस्तान, उन्हें सरफराज नवाज को मना के लाया, मेरे बॉलर्स को कुछ सिखाओ। लास्ट दौरा जो इंग्लैंड का था यूनिस खान का, वो 40 तक 50 तक कर रहे थे, स्कोर अच्छा नहीं खेल रहे थे। और मैं भी हैरान था कि वो ऑफ के बाहर पिछली टांग ले जाके शफल क्यों करते हैं। वो कैसा खेलते नहीं थे कभी, फिर खेलने की कोशिश करते। तो आखिरी मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे, पाकिस्तान मैच जीत गया। तो उनसे पूछा गया कि तब्दीली क्या आई, आज आपने ऐसा खेला, फिर से वैसा ही खेला जैसा आप खेलते हैं, वो शफल नहीं किया। कहा मुझे अजरुद्दीन ने फोन किया हैदराबाद से पिछले टेस्ट के बाद और कहा तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी गेम नहीं, तुम वही खेलो जो तुम खेलना जानते हो, तुम उसमें सही हो। और मैंने वही किया और मैंने डबल सेंचुरी बनाई। प्लेयर सपोर्ट ईच अदर, मीडिया या कुछ और फसाद करने की, झगड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन दे केयर फॉर ईच अदर इन लॉन्ग रन। मगर उसके लिए यह है कि प्यासे को कुएं के पास जाना है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, वैसी रिलेशन बनानी है। इनका मलिक शान का अगला सवाल यह है कि मुझे लगता है बख्शी स्टेडियम तो फुटबॉल के लिए बना है, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन ये चाहिए जो लीग है लेजेंड्स, ये वहां खेली जा रही है बख्शी स्टेडियम में। ये क्या माजरा है, ये क्या बात है? देखिए बख्शी स्टेडियम में मामला यह है कि नाइट का इंतजाम है, वो इनकम्प्लीट शेर कश्मीर स्टेडियम में नहीं है, और इसमें JKCA का कोई रोल नहीं है इस लीग में, और इसीलिए यहाँ खेली गई बख्शी स्टेडियम में। और लेजेंड्स लीग वगैरह जो है, हो सकता है आपको बुरा लगे, ये सिर्फ बैटिंग के लिए होती है, इस पर बैटिंग बहुत होती है, नतीजे का किसी को परवाह नहीं, किसी की मैच की कोई असर नहीं होता है, हारे हैं जीते हैं आप, एक तफरी है, प्लेयर पैसा कमाते हैं और कुछ बैटिंग से कमाते हैं, सिंडिकेट्स बैटिंग के, उसके अलावा मीडिया वगैरह से जो ये कंडक्ट करते हैं वो पैसा कमाते हैं, वो इस लीग का कोई रोल नहीं है। ये कोई सीरियस चीज नहीं है कि हो सकता है कि अगर सीनियर्स के सीरियस मैचेस होते, हमने देखे होते 50-50 ओवर्स के मैचेस इंडिया और वेस्ट इंडीज के, जिसमें विंगसरकर ने सेंचुरी बनाई, वहां से रिचर्ड्स ने सेंचुरी बनाई, बेबर्न स्टेडियम पूरा 30,000 लोग मैच देखने आए थे। वैसा ये नहीं है कुछ, ये तमाशा है। मोहम्मद इलियास कहते हैं कि बाबर शुड हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट बिफोर बीइंग ड्रॉप्ड। बेसिकली जो बड़ा प्लेयर होता है, जो अच्छा प्लेयर होता है, जिसका पता है उसको टीम में आना है, उसको इसलिए रेस्टेड कहा जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। ये अब आप कह रहे हैं और ये घर बैठ के आप बोल रहे हैं, और आप इख्तलाफ करते हैं मेरी बहुत चीजों से, अच्छा करते हैं क्योंकि आपके अपने आइडियाज हैं। कोई देखा है आपने प्लेयर इंटरनेशनल सर्किट में जो कहे 6 महीने मेरा फॉर्म नहीं है, मैं बाहर जाके बैठूंगा? होता है ये, वापस आना मुश्किल होता है। फिर अब वो रेस्ट किए गए हैं, अब वो प्रूव करने के लिए कि मैं अभी अच्छा हूं, वापस आने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कोहली बाहर रहे, उनके पर्सनल इश्यूज थे, और उसके बाद क्या असर है उनका अब आप देखिए, ही इज अनएबल टू बैट वेल। और कई खिलाड़ी किसी पर्सनल काम के लिए बाहर जाते हैं, सीरीज मिस करते हैं। पुराने जमाने में जो खिलाड़ी थे, आज से 40-50 साल पहले, वो पढ़ाई के लिए छोड़ देते थे सीरीज पे सीरीज खेलना। अब तो ये पढ़ते हैं नहीं, उतना इनको मौका ही नहीं मिलता, छोटी उम्र में ही आगे निकल जाते हैं क्रिकेट में। तो ये कहना बहुत आसान है, और घर बैठ के मैं कहूं, आप कहें, कोई भी कहे कि उसको रेस्ट करना चाहिए था, होता नहीं। इसमें बड़ी फास्ट मूविंग इंटरनेशनल सर्किट है, इसमें आप खुद ही बाहर निकल गए तो दाखिला वापस मुश्किल होता है। क्या बातें हैं क्विज के विनर की जानिब। वाजिद गुलजार बांडीपुरा से पिछले हफ्ते के क्विज के विनर, खेल के मैदान से, के बहुत बहुत मुबारक वाजिद गुलजार। और ये है आज का क्विज। कैसे वैसे hotmail.com पे आप जवाब भेजेंगे और कहेंगे। अब इंडिया का दूसरा टेस्ट और पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट आने वाला है, और इंडिया की लाइनअप में बैटिंग में तब्दीली का चांस है अगर गिल फिट हुए, और पाकिस्तान की लाइनअप में भी शायद जाहिद महमूद टीम में न रहें, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर खेले या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेले, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर हो जाएंगे टीम में। अगर जाहिद महमूद को आपने इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर टीम में रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ आकिब जावेद ने कहा है कि मैं चीफ सेलेक्टर बनने को तैयार हूं, मेरी कुछ शर्तें हैं कि मैं अपनी जो मैं करूंगा उसके खिलाफ काम नहीं करेगा बोर्ड, जो मैं कहूंगा वो माना जाएगा, मेरे फैसलों का पास रखा जाएगा, और मैं कंसिस्टेंसी चाहूंगा, और मैं हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम सिलेक्ट करूंगा, ये जो प्लेयर उसके लायक है उसको सिलेक्ट करूंगा। अपनी तरफ से अच्छी बात है उनकी,
لیکن اس سے پہلے انہیں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جو سلیکٹر کو نہیں دینی چاہیے. انڈیا میں آپ اگر کرو اور باقی سلیکٹرز کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے نہیں سنیں گے نا, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, دنیا میں کہیں. انہوں نے کہا تھا بابر اعظم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ کیپٹن شپ کے پیچھے ایگو لے کے دوڑ رہے تھے اور بیٹنگ اس لیے فیل ہو گئی. اگر انہیں چھوڑ دی ہوتی کیپٹن شپ پوری ایگو کا اپنا کم کیا ہوتا تو وہ ابھی بھی ایز بیٹسمین کھیل رہے ہوتے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسے صاف لگتا ہے کلیئر بائس آف عاقب جاوید اگینسٹ بابر اعظم. سلیکٹر ہو کے آپ یہ بات کہیں جبکہ آپ ایک فرنچائزی کے بھی کوچ ہیں یا کیا ہیں, تو آپ پہ شک کیا جائے گا مستقبل میں. اور ان حالات میں میرے خیال میں بابر اعظم صرف او ڈی آئی میں کھیلیں گے عاقب جاوید کے ہوتے ہوئے, جب تک کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے. سلیکٹر اور چیف سلیکٹر کو سلیکشن کے بارے میں پبلک میں باتیں نہیں کرنی ہوتی, بالکل نہیں. اسے ان کی انٹیگریٹی بھی رہتی ہے, عزت بھی ہوتی ہے اور ان پہ شک بھی نہیں کیا جاتا ہے. لیکن بات کون سمجھائے, وہاں سمجھنے والے نہیں ہیں. ملتے رہیں گے. خدا حافظ.